آغاز کریں گی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. جی آغا حسین مرتضی صاحب نہیں آئے. جی آغا حسن بلوچ صاحب جی ہمیں انہوں نے بھی جوائن کیا. تو یہ اس وقت پوری فل ریپرزینٹیشن آف اتحادی جماعت جو ہے وہ اس وقت اسٹیج پر اور زوم لنک پر موجود ہے. شکریہ جی. حنان صاحب آپ بات کریں گے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اجازت سے میں آغاز کرتی ہوں اور اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ، بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ اور تمام جو اتحادی جماعتوں کے نمائندگان یہاں بیٹھے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اپنی بات کا آغاز چرچل کے اس کوٹ سے کروں گی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے سوال کیا تھا. جنگ کا زمانہ تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور اگر وہ انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اسی طرح خلفائے راشدین کا قول ہے کہ جو ظلم کا نظام ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں جب آج پریس کانفرنس کے لیے، کیونکہ جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری تھی پریس کانفرنس کے لیے، تو میں آج جب پریس کانفرنس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے بہت سارے میرے ہمدردوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاناما کی اپیل ہے وہ سنی جا رہی ہے اور وہ فائنل سٹیجز میں ہے، تو آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے وہ آپ کی اپیل پر آئے گا اور آپ کو شاید وہ ڈسکوالیفائی کر دیں. تو میں نے یہ جواب دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے سے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے، قوم کا سوچنا پڑتا ہے، اور قوم کے لیے کچھ حقائق ایسے ہیں جو آج مجھے قوم کے سامنے رکھنے ہیں. میں 75 سالہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتی، وہ بھی انہی چیزوں سے عبارت ہے. لیکن اگر پچھلے چند سال کے 2016 سے آپ شروع ہو جائیں اور آج تک کے واقعات آپ دیکھ لیں، عدالتی فیصلے آپ دیکھ لیں، تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ایک داستان انسان کے سامنے آتی. فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن غلط فیصلے کے بعد ایک غلط فیصلہ، اس کا ایک تسلسل سے ہونا. فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے. فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں اور اثرات کم نہیں ہوتے. آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں. اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے. میں ابھی پورا ایسے لکھ کے دے سکتی ہوں، پورا مقدمہ لکھ کے دے سکتی ہوں عدلیہ کی تعریف میں، لیکن ایک غلط فیصلہ اس سارے مقدمے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور اسی طرح اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس فیصلے کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. جو حقائق آج میں قوم کے سامنے رکھنے چاہتی ہوں وہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں، ابھی چند دنوں پہلے جو فیصلے ہوئے اس نے میرے دل میں، دماغ میں، میری یادداشت، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ واپس آ گئیں. میں ان کو مختصراً کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ وہ ناانصافیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ مولانا صاحب مجھے تھوڑا سا اگر وقت عنایت فرما دیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا، وہ جیت گئے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، دیواریں پھلاندیں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کی، اور قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو رجسٹری کھلی،
रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? लोगों की पिटिशंस जाती हैं इंसाफ के लिए, वो पिटिशंस लगती ही नहीं है, इंतजार में कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं। अब मैं उसकी तफसील में जाऊंगी तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। और जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत। संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड हैं। अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ। वहां पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया, हालांकि वो भी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया। कासिम सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है? क्यों उनको नहीं बुलाया गया? और वहीं से अगर आगाज कर लें तो कासिम सूरी साहब ने का ओपन एंड शट केस है, उनके जाली वोट साबित हुए हैं और 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट साहब भी इन्वॉल्व थे, कासिम सूरी साहब भी इन्वॉल्व थे, किसी कोर्ट ने उनको नहीं बुलाया। प्राइम मिनिस्टर को तो शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने अक्सर कोर्ट में देखे जाते हैं, उसकी तफसील में मैं बाद में आती हूं। फिर 25 अरकान को कहा कि डी सीट हो गए। डी सीट उस सूरत में कि अगर पार्टी हेड ये दरखास्त दे कि इन्होंने पार्टी हेड की मंशा के खिलाफ वोट दिया, लिहाजा इनको डी सीट किया जाए। आपने डी सीट भी कर दिया, कहा कि उनके वोट्स भी नहीं गिने जाएंगे। 95% जो इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीराइट करने के मुतरादिफ है। और नतीजतन मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान इमरान खान की झोली में फेंक दिए और चौधरी शुजात साहब के 10 अरकान PMLQ के, उनको भी इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। मतलब PMLN के माइनस कर दें और PTI के प्लस कर दें, ये कहां का इंसाफ है? फिर पार्टी का हेड देखकर और पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है, पार्टी हेड की डेफिनेशन बदल जाती है, अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं जो अभी चंद दिन पहले किए। ये कोई 10 साल पुराना फैसला नहीं है, चंद दिन पहले। पार्टी का हेड अगर नवाज शरीफ है, उसके खिलाफ इकामा जैसे फैसला जो तारीख में की रद्दी की टोकरी में जाएगा, उस पे नवाज शरीफ साहब को पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया गया और कहा कि चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी या पार्टी का जो सरबराह होता है वो सब कुछ होता है, उसके कहने पे पार्टी चलती है, उसका वोटर्स पे इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए नवाज शरीफ साहब से वो सदारत ले ली गई। चौधरी शुजात साहब जब बतौर पार्टी प्रेसिडेंट अपनी पार्टी को कोई अहकामात देते हैं तो पार्टी प्रेसिडेंट के अहकामात तब क्वेश्चन में आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जब बतौर पार्टी सदर या चेयरमैन हुक्म देते हैं तो वो मोतबर ठहरता है। चौधरी शुजात साहब की दफा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है और इमरान खान साहब की दफा पार्टी चेयरमैन की
डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है. और देखें, तराजू तो ठीक कर लें. तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा. और ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये किधर से नए नए आइडियाज, नित नए आइडियाज, मुनफरिद आइडियाज आते हैं? कभी सुना आपने कि कोई ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर हो? जब से हमजा चीफ मिनिस्टर बना है, पंजाब में उसको काम नहीं करने दिया गया. वो काम नहीं कर सका, अपनी काबीना नहीं बना सका. बार बार पार्लियामेंट से कोर्ट, कोर्ट से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कोर्ट, कोर्ट से पार्लियामेंट. तो ये कहां का इंसाफ है? फिर कमेंट्स में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि इकोनॉमी की स्टेट अच्छी नहीं है. मैं इस पर भी बात करना चाहती हूं. 4 साल जब इकोनॉमी के नट बोल्ट्स खोले जा रहे थे, जब इमरान खान इकोनॉमी की तबाही कर रहा था, एक स्टेटमेंट आपने कभी सुनी है कि इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है? इकोनॉमी की जब बात होगी तो अप्रैल 22 में जब हमें हुकूमत मिली और आज जुलाई 22 में ये मुआजना नहीं होगा. फिर मुआजना होगा 2017 का पाकिस्तान, जब आपने नवाज शरीफ को निकाला था, तब इकोनॉमी की क्या स्टेट थी, और जब अप्रैल में इमरान खान हुकूमत छोड़ के गया तो इकोनॉमी की क्या स्टेटस थी. उस वक्त वेंटिलेटर पे इकोनॉमी थी, लेकिन उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, कोई वो स्याहो सफेद का मालिक रहा. उसने पाकिस्तान के हर शोबे में तबाही की, लेकिन उसको खुली आजादी तब भी थी, उससे पहले भी थी, आज भी है. और इकोनॉमी की बात साइड पे आप अगर रहने दें, वो उसकी भी एक बहुत लंबी तफसील है. आप सिर्फ चंद होशरुबा हकायक आप देख लें कि मलिक रियाज साहब को 50 बिलियन जो है वो बरतानवी हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देती है, और वो अपने जो कैबिनेट है उसमें एक बंद लिफाफा लहराते हैं. उस बंद लिफाफे में अल्लाह जाने क्या है. ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर एसेट्स हम किसी को दे रहे हैं खुदा न खास्ता, या कश्मीर में सरेंडर कर रहे हैं, आपको क्या पता क्या है. उन्होंने वो इस तरह बंद लिफाफा दिखाया और वो पैसा 50 अरब रुपया मलिक रियाज साहब को साइफन ऑफ कर दिया. वो पाकिस्तानी कौम का पैसा था. कहाँ है उसकी मनी ट्री? उस पे किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया? और मईशत की भी अगर आज आप बात करें तो मईशत के खराबी के सारे ताने बाने 2017 में जब आपने एक चलती हुई हुकूमत को, जिसमें हर इंडिकेटर माशी ऊपर जा रहा था, आपने उसको डिस्टेबलाइज किया. उसके ताने बाने भी कोर्ट के फैसलों से मिलते हैं. जब से आपने नवाज शरीफ साहब को इकामा जैसे मजाक पर निकाला, तब से ये मुल्क, जिस तरह जहाज में जब टर्बुलेंस होती है तो लोग सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं, उनको कहा जाता है, उसी तरह ये मुल्क टर्बुलेंस का शिकार है. 2017 के बाद से लोगों ने सीट बेल्ट्स खोली नहीं है आज तक. ऐसा मुल्क वो हिला कि अब संभलने में नहीं आ रहा. JITs बनी, पाकिस्तान की तारीख की पहली JIT थी. व्हाट्सएप कॉल्स पे वो JIT बनी, एक एक तफसील सामने आई. मॉनिटरिंग जज लगाया गया, पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया था. और वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था, वो आज भी मॉनिटरिंग जज लगा हुआ है. वो ताहयात मॉनिटरिंग जज वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर. हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होते हैं. तो बाकी की सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं, इंसाफ करने वाले जजेस हैं, अच्छी रेपुटेशन के मालिक जजेस हैं, किसी भी शक्को शुबा से बालातर उनकी इंटेग्रिटी है, वो वाले जजेस हैं. उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाता? एक या दो जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट रहे हैं, बार बार एस्टैब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है.
तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। और फिर क्या क्या इल्काबाद से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 5 जजेस ने हमें नहीं नवाजा। गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, शेक्सपियर के ड्रामे से निकाल के वो चीजें लेकर आए। कभी किसी ने तारीख में नहीं सुना। और इतने बड़े बड़े इल्काबाद से नवाजा और निकला और पूरी दुनिया में खोजी दौड़ा दिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत ले आओ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सबूत ले आओ। सबूत होता तो मिलता ना। जहां गुनाह होता है, जहां जुर्म होता है, उसका सबूत हमेशा होता है। कुछ नहीं मिला। और फिर आखिर में सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, सब कुछ कह के और आखिर में एक इकामा पर चलता किया। और माय लॉर्डशिप्स, मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ कहती हूँ कि जिस अदालत में पनामा का केस चल रहा था, उसी अदालत में उस बेंच पे बैठे हुए एक जज ने, जस्टिस खोसा ने, मैं XYZ नहीं कहती, मैं नाम लेती हूँ, जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुनता हूँ। देयर बाय मीनिंग के नवाज शरीफ को निकालना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूं, हम निकालते हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि वो निकाला गया उनको उसी अदालत में। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि उसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में डिक्लेयर्ड इश्तिहारी इमरान खान, जो डिक्लेयर्ड इश्तिहारी था, वो उसी कोर्ट रूम नंबर 1 में फाजिल जजेस के सामने पेश होता था। पेश नहीं होता था, बैठ के पनामा की प्रोसीडिंग्स देखता था, तालियां बजाता था, छलांगे लगाता था। और किसी में इतनी टांग पे टांग रख के बैठा पूरी पनामा की कार्रवाई देखता था, क्योंकि उसको पता था आखिर में फैसला क्या आएगा। कभी किसी जज ने उसको पूछा कि भाई तुम इश्तिहारी हो, तुम यहां कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या कर रहे हो? वो हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था, वो कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था, वो इंसाफ का मजाक उड़ा रहा था, वो अदल का मजाक उड़ा रहा था, वो उन जजेस का मजाक उड़ा रहा था जो 5 बेंच का स्क्वाड बैठा हुआ था, उनका मजाक उड़ा रहा था कि देखो मैं इश्तिहारी हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कह सको। और फिर बात वहां पर नहीं रुकी। आप ये देखें कि हमें तौहीन अदालत में हमारे कितने लोगों को चुन चुन के बाहर किया गया, हालांकि तारीख गवाह है कि उनमें से किसी ने कोई तौहीन अदालत नहीं की थी। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज साहब, सबकी बात आप ले आए। आज तक